Hello everyone, this is Deepa. Students, today we will learn about ruling the countryside, which is the third chapter of history. In my previous video, we have seen Robert Clive accepted Diwani of Bengal, Bihar, and Orissa, and company becomes Diwan. And we have learned about how company converted India into its colony, how they organized revenue resources, how redefined rights of the people, and they decided to produce the crops it wanted. And after that, they have decided to implement some of the taxes revenue on the cultivators. After imposing taxes on the cultivators, when the cultivators are not able to give it to the company, they decided to improve agriculture and discuss at least 2 decades what should be done. After that, the company introduced a permanent settlement that was implemented in 1793, and we have seen the some of the problems they faced by company and cultivators also. Today we will learn about the three systems, which is revenue policies imposed by company. So here three land revenue policies. First one is permanent settlement, second one is Ryotwari system, third one is Mahalwari system. Let's move towards permanent settlement. The company had to take some steps to improve agriculture by improving investment in land. The permanent settlement was introduced in 1793. According to this, the Rajas and Talukdars were recognized as Zamindars and were given the responsibility of revenue collection from the peasants. The amount to be paid was fixed permanently, and hence the name permanent settlement. The company officials felt that it would ensure a regular flow of revenue. They also felt that this would motivate the zamindars to invest in improving the land. The zamindars would benefit from increased production because the revenue demand would be not increased. कंपनी ने जो ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, इसको हमने स्थायी बंदोबस्त कहा। उनकी शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदार जो थे को ज़मींदारों के रूप में, यानी कि जो राजा और तालुकदार थे उनको नया नाम दे दिया गया, ज़मींदार बना दिया गया, उनको ज़मींदारों की मान्यता दे दी गई। और किसानों से लगान वसूलने को कंपनी को राजस्व के लिए राजाओं को ही इस कार्य में लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो लगान वसूला उन्होंने, तो जब ये ज़िम्मा दे दिया गया राजाओं को, तो चुकाने वाली जो राशि थी वो उन्होंने परमानेंट कर दी थी, मतलब स्थायी रूप से तय कर दी थी कि वो भविष्य में कभी बदली नहीं जाएगी। और अंग्रेज़ों को लगता था इससे क्या होगा कि उनको रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू मिलेगा, यानी कि नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज रेवेन्यू डिमांड वुड बी इंक्रीज। इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में ही रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर दैट दे हैव टू implement a new system, that is Mahalwari system. In this system what happened, here students, Mahal means what? In British revenue records, Mahal is a revenue state which may be a village or a group of villages. यानी कि ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन्होंने महल एक गांव या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस को महल का नाम दिया, जिनसे उन्हें लगान वसूलना था। इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ द एरियाज इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। एन इंग्लिशमैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी devised the new system. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his direction, collectors went from village to village, inspecting land,
measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. And the estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village or mahal had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed as permanent settlement. Now the charges of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than zamindars. So this system came to be known as Mahalwadi system. Now I am going to explain in Hindi. ये जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट थे, जो आजकल जो हमारा उत्तर प्रदेश का पार्ट है, इंग्लिश मैन जिनका नाम था होल्ट मैकेंजी, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एंड इट वाज केम टू बी इन इफेक्ट इन 1822। 1822 में ये प्रभाव में आया। He felt the village was an important social institution in northern Indian society and needed to be preserved. यानी कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो हमारा जो नॉर्दर्न इंडियन की सोसाइटी है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, उसमें जो खेती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे लोग इसमें जो लगे हुए हैं, तो इट शुड बी प्रिजर्व, इसको बचा कर रखना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर वेंट विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, यानी कि उनके होल्ट मैकेंजी के शासन के दौरान लोग ना, जो कलेक्टर्स थे, उनको गांव-गांव में जा कर के दौरा करने का, मतलब इंस्पेक्शन करने का काम दिया गया और उस ज़मीन को चेक करने का काम भी दिया गया और खेतों को मेजर किया गया, मापा गया कि विभिन्न समूह और रीति रिवाजों वाले लोगों का मतलब जो रीति रिवाज हैं उनको जानने के लिए कहा गया। उसके बाद जो ये ग्राम का समूह था उसको महल बोल करके इन्होंने अनुमानित एक राजस्व एक अनुमानित किया कि इस गांव में कितना हमें मिल सकता है, इस गांव में कितना हमें राजस्व मिल सकता है, और उसको इकट्ठा करके ये जिम्मेदारी किसको दे दी, गांव के मुखिया को दे दी। हियर वी कैन सी द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू इज़ गिवन टू द विलेज हेडमैन। पहले ये परमानेंट सेटल में इसको ज़मींदार को दिया गया था, लेकिन अब गांव के मुखिया को दी गई ये जिम्मेदारी, और ये पैसा कलेक्ट करने के बाद उनको वापस कंपनी को देना होता था। इस सिस्टम को हमने महलवाड़ी सिस्टम यानी कि महलवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द न्यू सिस्टम दैट इज़ नोन एज मुनरो सिस्टम। In the British territories in the south, there was move away from the ideas of permanent settlement. ये लोग थोड़ा सा permanent settlement के ही ideas को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक नई व्यवस्था इम्प्लीमेंट करी जो कि रैयतवाड़ी सिस्टम के नाम से भी जानी गई है ना। Now new system that was divided came to be known as Rayatwadi or Rayatwadi. Here the student Rayat means what? Rayat means cultivator, peasant, farmer. ठीक है, तो ये नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया इन्होंने जो कि रैयतवाड़ी के नाम से जाना गया। ये सिस्टम को हम मुनरो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। The Munro system is any other case called the Rayatwadi system as the system was introduced to update the zamindari divides. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reid in some of the areas subsequently developed by Thomas Munro. The system was gradually extended all over South India. Reid and Munro felt that in the south there was no traditional zamindars. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivator who had tilled the land for generations. And Munro thought that the British should act as paternal father figure protecting the rows under their change. जब ये नया सिस्टम लाया गया मुनरो के द्वारा, ये जो मुनरो थे इनके एक फ्रेंड थे अलेक्जेंडर रीड। मुनरो ने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था जब उनका युद्ध टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, और उस दौरान उन्होंने इस
मुनरो सिस्टम को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था और इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था कि ये व्यवस्था किस तरह से काम करेगी। फिर जैसा अलेक्जेंडर रीड ने किया वैसे ही थॉमस मुनरो ने भी डिसाइड किया कि इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सब्सिक्वेंटली डेवलप बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। पहला जो सिस्टम था हमारा, वो सिस्टम क्या था, नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए था, मगर ये जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था ये साउथ इंडिया के लोगों के लिए था। और इसी को स्मॉल स्केल पर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने आगे बढ़ा दिया। इसके अकॉर्डिंग रीड और मुनरो ने ऐसा सोचा कि दक्षिण में जो परंपरागत ज़मींदार हैं वो नहीं हैं, या वी कैन से देयर वाज नो ट्रेडिशनल ज़मींदार। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया, एक तर्क दिया कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, यानी कि जो राजस्व है वो सीधे किसानों से ही लेना चाहिए, और जो कि पीढ़ियों से ज़मीन पर शासन कर रहे हैं। दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटेड रोज हु हैज टिल्ड द लैंड ऑफ जनरेशंस। फिर मुनरो ने अपना एक विचार दिया कि जो हम अंग्रेज़ हैं, हम अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम. So thank you very much, students. Again we will come with new video that will be about cultivation of European parts and some of the crops like indigo or opium and what happened after these system. Okay, thank you very much everyone.